بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس العشرون منصرف اور غیر منصرف کا بیان۔ ابھی تک پیچھے جو ہم نے اسباق پڑھے تھے اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اعراب میں جن اسما پر اعراب ظاہر ہوگا وہ معرب ہوتے ہیں، اور جن اسما پر اعراب ظاہر لفظوں میں نہیں ہوتا وہ مبنی ہوتے ہیں۔ کچھ اسما ہم نے پڑھے تھے کہ جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں، ان کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے معرب اسما کا اعراب شروع ہو رہا ہے، تو بتا رہے ہیں اس میں معرب جس پر زبر بھی آ جاتی ہے، زیر بھی آ جاتی ہے، پیش بھی آ جاتی ہے، ان میں اعراب تبدیل ہوتے ہیں، تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا منصرف ہوتے ہیں یا غیر منصرف ہوتے ہیں۔ منصرف وہ جس پر تنوین اور کسرہ آئے گا، غیر منصرف وہ جس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ جیسے دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے جس اسم معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ آتے ہیں اسے منصرف کہتے ہیں اس اسم کو۔ جیسے جاء زیدن، نظر تو الی زیدن، لفظ زید کی طرف دیکھیں اس پر تنوین آ رہی ہے، اور لفظ زید دوسری مثال میں الی حرف جار کے بعد زیدن آ رہا ہے، اس پر تنوین بھی آ رہی ہے اور جر بھی آ رہا ہے، دونوں نشانیاں پائی جا رہی ہیں، تو یہ منصرف ہے۔ ٹھیک ہے جی، چاہے ایک پائی جائے چاہے دونوں آ جائے، دونوں منصرف ہے۔ لیکن یہی لفظ جب لے کر احمدو احمدو کی طرف آتے ہیں تو جا احمدو پڑھے، تنوین نہیں آیا، یا نظر تو الا احمدہ پڑھے، الا حرف جار کے بعد لفظوں میں ہمیں وہ کسرہ نظر نہیں آ رہا، تو غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس اسم معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہیں آتے، اسے غیر منصرف کہتے ہیں۔ جیسے جاء احمدو، تنوین نہیں آیا، نظر تو الا احمدہ، اسی طرح کسرہ نہیں آیا، حرف جار کے بعد کسرہ آ جاتا ہے اسم پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں کسرہ نظر نہیں آ رہا۔ آگے بتا رہے ہیں درج ذیل اسما غیر منصرف ہوتے ہیں۔ غیر منصرف ہوتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ ایسے اسم ہوتے ہیں کہ جو جن پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ علی حیدر بھائی آپ بتا سکتے ہیں غیر منصرف کون سے اسما ہوتے ہیں، کون سے اسم معرب ہوتے ہیں؟ وہ اسم معرب جس پر کسرہ اور تنوین، وہ اس میں معرب جس پر کسرہ اور تنوین نہیں ہوتی وہ غیر منصرف کہلاتے ہیں۔ ماشاء جی انس بھائی، انیس بھائی آپ بتا سکتے ہیں اس میں غیر منصرف کس قسم کے اس میں معرب ہوتے ہیں؟ اچھا توجہ دیجیے، جی بیان کیجیے۔ جاء احمد، نظرت الى احمد۔ ماشاء یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف وہ اس میں معرب ہوتے ہیں جن پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ اب آئیے ان کی وضاحت، یہ 7 طرح کے اسما ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو جمع منتحل جمع کے صیغے پر ہو، ایک وہ اسم جو جمع منتحل جمع۔ اب اس لفظ کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ جمع جو منتحل جمع، جمع کہتے ہیں جمع کی یہ قسم ہے یعنی انتہائی جمع بن جائے۔ جیسے آپ نے پڑھا مسلمن، ایک مسلمان مرد، اس کی جماعت ہے مسلمون، یہ اس کا ترجمہ ہوگا بہت سارے مرد۔ اب جیسے مسجد کی بنائے مسجدن، مسجد، مسجدون بہت ساری مسجدیں، اور زیادہ جمع بنائے جس کے آگے مزید جمع نہ بن سکتی ہو، منتہا ہو جائے، انتہا ہو جائے، منتحل جمع یعنی جمع کرنے کی انتہا، وہ لفظ آتا ہے مساجد۔ جو جمع منتحل جمع کے صیغے پر ہو، یعنی صیغے سے کیا مراد ہے؟ اس کا پہلا دیکھے تو فتحہ آئے گا، دوسرا لفظ دیکھیں، دوسرا حرف دیکھیں گے فتحہ آئے گا، تیسرے جگہ پر الف آئے گا، جیسے 10 نمبر حاشیے میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ چوتھی جگہ پر وہاں پر کسرہ آئے گا، مساجدو، منازرو، ہے نا، مساجد، مناظر، مراحل، مکاتب، تو یہ مکاتبو، مساجدو، مناظرو، ان جگہ پر اس وزن پر جو لفظ آتا ہے وہ کہلاتا ہے جمع
मुंतहल जमू के सीगे पर, जो भी जमा मुंतहल जमू के सीगे पर हो और उसके आखिर में ता ना आए, जैसे मसाजिदू, वो गैर मुनसरिफ होते हैं। यानी मतलब ये कि ना उस पर तनवीन आएगा ना कसर आएगी। दूसरा इसम कौन सा होगा? जिस इसम के आखिर में अलिफ मकसूरा आ जाए या अलिफ ममदूदा आ जाए। अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, ये मुअन्नस होने की निशानियां हैं। और इसके बारे में हमने पढ़ा था, अलिफ मकसूरा जिसके आखिर में अलिफ हो, जैसे सुगरा, बुशरा। ठीक है। और ममदूदा होने की निशानियां जैसे हमराउ। अलिफ के बाद अगर हमजा आएगा, अलिफ के बाद अगर हमजा आएगा तो ये अलिफ ममदूदा होने की निशानी है, जैसे खजरा, हमरा। तो यहाँ पर ये हमें वजाहत हो रही है, अलिफ ममदूदा। अब अगर आप गौर करें, सुगरा, बुशरा, इसके आखिर में या लिखी जाती है, तो वो अरबी में लिखने में आएगी, पढ़ने में नहीं आती। अलिफ का ही तर्जमा आ रहा है, रा अलिफ जबर रा, है ना। तो वो इसम जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा हो, वो होता है गैर मुनसरिफ। यानी उस पर तनवीन या फिर कसरा नहीं आती। तनवीन कहते हैं दो जबर दो जेर दो पेश को। आप बता सकते हैं कितने अस्मा जमा हो गए जिन पर हमने पढ़े? एक जमा जो मुंतहल जमू के सिगे पर हो, और वो इसम जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा हो। ये बयान कर सकते हैं कितने अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं? नंबर एक, उस्ताद साहब ये समझ में नहीं आया, वापसी समझा दें। ये वाला लफ्ज, वो जमा जो मुंतहल जमू के सीगे पर, ये वाला। जी। ठीक है। यहां पर एक लफ्ज देख रहे हैं, दराहिम। जी। पहला वाला हर्फ जबर वाला है, दूसरे वाले हर्फ पर जबर है, तीसरे वाले हर्फ पर, तीसरी जगह पर अलिफ आ रहा है, चौथी जगह पर वो कसरा वाला जबर आ रहा है। आगे जितने भी अल्फाज, दराहिम। इसी तरह लफ्ज आ रहा है मसाजिदुन, मसाजिद। ठीक है। अली हैदर भाई, समझ आ रही है? मसाजिद जी। जी। यहां पर लिखा जाए, या फिर यहां पर लिखा जी। जाए मनाजिर। मंजर की जमा मनाजिर। इस लफ्ज पर ये जो अभी आपको वजन बताया ना, पहले चार हरफों की तरतीब, पहला भी मफ्तू हो, दूसरा भी मफ्तू हो, फिर अलिफ आ जाए, फिर आखिर में चौथी जगह पर कसरा आए। ये वाला जो वजन आएगा ना जिसका भी, जैसे मसाकिन है, मसाकीन। आपको समझ आ रही है पैरवी? ये वाला जी। जो, जी। ये वाला जो वजन होगा ना जिसके पहले चार हर्फ, आसा तीजा, आसा तीजा, ये वाला वजन इसे कहते हैं जमा मुंतहल जमू का वजन। यानी ऐसी जमा जिसकी आगे मजीद जमा नहीं बन सकती। जैसे एक लफ्ज मैं लिखता हूं यहां पर मस्जिदुन, मस्जिदुन की जमा बनाए मस्जिदूना, है ना। इसकी जमा जी। मुंतहल जमू बना ले, यानी इसकी मजीद जमा ना बन सकती हो, तो वो बनती है मसाजिद। अब आप समझे? जी। ये वो लफ्ज कह रहे हैं, जो भी जमा मुंतहल जमू के वजन पर होगी, सीगे पर होगी, तो उसके आखिर में अगर ता ना आती हो, तो ऐसी सूरत में वो गैर मुनसरिफ होगा। ना तो वो उस पर तनवीन आ रही होगी, ना उस पर कसरा आएगा। पहला कायदा ये है, वो जमा जो मुंतहल जमू के वजन पर हो, सीगे पर हो, उसके आखिर में ता ना हो, तो ऐसी सूरत में वो गैर मुनसरिफ होता है। दूसरा इसम बताया जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो या अलिफ ममदूदा हो, जैसे सुगरा, हमराउ। इस ये भी गैर मुनसरिफ होते हैं, इस पर भी कसरा और तनवीन नहीं आती है। अब आ जाए तीसरा इसम। तीसरा इसम वो इसम होता है जो इसमें अदद हो, यानी तादाद बयान करने वाले अस्मा में से
लेकिन तादाद बयान करने वाले अस्मा तो बहुत सारे होते हैं, वाहिद होते हैं, इसनान होते हैं, सलासा, रुबा, खमसा। तो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें अदद में जो फ़ुआलु और मफ़आलु के वजन पर आए, उहादु और माशरु, इस वजन पर जो आएगा ना, तो वो इसमें अदद गैर मुनसरिफ होगा, बकिया नहीं। उहादु और माशारू के वजन पर, फ़ुआलु और मफ़आलु, या जैसे उहादु माशारू, ये वो अल्फाज आएंगे जो फ़ुआलु और मफ़आलु के वजन पर इसमें अदद आएगा, वो गैर मुनसरिफ होगा। चौथा इसम बयान किया कि वो अलम, ऐसा नाम, अलम नाम को कहते हैं ना, ऐसा नाम जो दो इसमों को बगैर इजाफत व इस्नाद के मिलाकर बनाया गया हो। अब देखें, हमने ये नाहव पढ़ना शुरू की थी, इसकी तारीफ में पढ़ा था कि अरबी जुबान में जब भी कोई जबर जेर पेश आएगा आखिर पर, वो हमने सीखना है कायदे कानून के तहत आया कि नहीं आया। फिर हमने ये देखना होगा कि दो इसमों को किस कायदे के जरिए मिलाया गया। अरब में बहुत कम ऐसे अल्फाज हैं, जैसे बाला बक्कू, यहाँ पर बाला बक्कू ये लफ्ज है जो बगैर इजाफत और इसनाद, बगैर किसी कायदे कानून के दो लफ्जों को एक मिला दिया। असल में बाल कहते हैं बुत को, बाल एक बुत का नाम था और बक्कू उसके पूजने वाले का नाम था। करते करते लोगों ने शहर का नाम ही बाल बक्कू डाल दिया, उसके इलाके का नाम ही बाल बक्कू डाल दिया। अब अगर अरबों का देखा गया कायदा कानून कि भाई दो लफ्ज ऐसे मिलते हैं, दो लफ्ज इस तरीके से मिलती हैं, ये कायदा होता है, ये कायदा होता है, लेकिन बाल बक्कू, बाल बक्कू को जब देखा गया, अरबों ने नाम तो रखा हुआ था इसका, शहर का नाम, लेकिन ये दो इसम बगैर किसी कायदे के, बगैर इजाफत, बगैर इसनाद के एक हो गए थे। तो अब ऐसी सूरत में वो अलम, वो नाम जो दो इसमों को बगैर कायदे कानून के मिलाकर बनाया गया हो, वो गैर मुनसरिफ होता है, ना तनवीन आएगी ना कसर आएगी। समझे बात। फिर आगे बता रहे हैं, जो फ़ुआलु, ऐसा नाम, ऐसा अलम जो फ़ुआलु या अफ़आलु के वजन पर आ जाए, जैसे उमरु और अहमदु, अनवरु, अकरमु। अकरम नाम होता है ना, अहमद नाम होता है, इसी तरह अंसर नाम होता है, इसी तरह अनवर नाम होता है। तो अगर जो नाम है, अलम है, जो अफ़आलु या फ़ुआलु के वजन पर आ रहा है, तो ऐसी सूरत में वो अलम भी जो है गैर मुनसरिफ होगा, उस पर भी कसरा और तनवीन नहीं आएगी। अभी तक हमने चार पढ़े वो अस्मा। पहला वाला जमा मुंतहल जमू, दूसरा इसम अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा, तीसरा इसम वो इसमें अदद जो फ़आलु मफ़आलु के वजन पर हो। चौथा पढ़ा कि दो, एक ऐसा अलम जो दो कलिमात को बगैर कायदे कानून के एक बना दे, या फ़आलु या अफ़आलु के वजन पर आए। वो नाम, वो अलम जो बगैर किसी कायदे कानून के दो लफ्ज मिलकर एक बन जाए, या फ़ुआलु या अफ़आलु के वजन पर आए। जी, ये चार अस्मा आपको याद है, कोशिश करें मेरे साथ मिलकर ये याद कर लें। पहला इसम था जमा मुंतहल जमू, दूसरा इसम था जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा अलिफ मबदूदा हो, तीसरा वो इसमें अदद जो फ़आलु और मफ़आलु के वजन पर हो, और चौथा वो अलम जो दो इसमों को बगैर कायदे कानून के, बगैर इजाफत व इसनाद के बनाया गया हो, या फ़आलु और अफ़आलु के वजन पर हो। ठीक है जी। अब आइए पांचवा इसम देखते हैं। पांचवा इसम वो है, वो अलम, अलम माना नाम, जिसके आखिर में ता आ जाए। जैसे एक आप मिसाल दे, दारिबतुन मारने वाली, आलिमतुन इल्म वाली, ये एक सिफत का सीगा है। आलिमा किसी का नाम ही रख दें, सालिहा किसी का नाम ही रख दें, अब वो अलम बन गया, अब वो सिफत का सीगा नहीं है। सालिहा उस औरत का नाम है, तलहा तू इस मर्द का नाम है, आयशा तू इस औरत का नाम है। जिस अलम के आखिर में ता आ जाए वो गैर मुनसरिफ होता है, या उसके आखिर में अलिफ नून जायद आ जाए, जैसे उस्मान, रिजवान, हमदान, ऐसा अलिफ नून आ जाए इसम के आखिर में, अलम के आखिर में, वो भी गैर मुनसरिफ होता है। पांचवा है वो अलम जिसके आखिर में ता हो या अलिफ नून जायद हो। पांचवा है वो अलम जिसके आखिर में ता हो या अलिफ नून
जायद हो। ठीक है जी, ये बात भी समझ गए। छठा है कि वो मुअन्नस अलम, यानी किसी मुअन्नस चीज का नाम है या अजमी अलम है। मुअन्नस चीज का नाम की मिसाल देख ले, जैसे जैनबू, जैनब, वो मुअन्नस अलम या अजमी अलम। यानी एक होता है अरबी के अल्फाज होते हैं, एक होता है अरबी के अल्फाज नहीं होते, किसी और जुबान, अबरानी, सुरी, अबरानी के जुबान है, सुरियानी के जुबान है, या फिर वो ऐसा अलम है जो फारसी के लोग, अब करीब करीब फारिस के रहने वाले थे, फारसियों से आ गया। तो अब ऐसी सूरत में अजमी अलम है जो तीन हुरूफ से जायद हो, जैसे इसहाक। ये अबरानी या सुरियानी जुबान का लफ्ज है, अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है। या तो वो मुअन्नस अलम हो या अजमी अलम जो तीन हुरूफ से जायद हो, जैसे इसहाक। या अगर अजमी अलम है, सिर्फ तीन हर्फ हों, तो उसका फर्क यह है कि उसका दरमियानी हर्फ मुतहरिक होना चाहिए, जैसे सकारू। सकारू जहन्नम को कहते हैं, ये अरबी का लफ्ज नहीं है। शतरु, शतरु वो शुतर मुर्ग, आपने पढ़ा होगा नाम। शुतर मुर्ग को शतरु जो है ना, ये अरबी का लफ्ज नहीं है, ये फारसी का लफ्ज है। ठीक है जी। वो मुअन्नस अलम या फिर अजमी अलम जो तीन हर्फ से जायद हो, या फिर उसके अंदर तीन हर्फ हैं तो दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक हो। हर मुतहरिक से मुराद यानी उस पर जबर जेर पेश हो, साकिन ना हो। उस्ताद साहब, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अजमी अलम है या नहीं है? जी बिल्कुल, आपने ये सही सवाल किया, यही मेरा अगला वो था। देखिए, मैं और आप अजमी लोग हैं। हमें किसी भी चीज को जानने के लिए कि इसकी हकीकत क्या है, ये अरबी लफ्ज है या अजमी लफ्ज है, वो डिक्शनरी का सहारा लेके। जैसे इंग्लिश मुझे और आपको नहीं आती, तो वो सीखने के लिए हमें डिक्शनरी देखनी पड़ेगी कि इस वर्ड की असल में क्या, वो क्या बना, कैसे बना। जैसे इंग्लिश का वो देखते हैं, अरबी में अगर ये लफ्ज कोई निकलेगा, जैसे जैनबू, जैनबू अब टमाटर को कहते हैं, ऊंट को कहते हैं, ये किसी औरत का नाम है, ये देखने के लिए मैं डिक्शनरी का इस्तेमाल करूंगा। इसहाकू, ये किसी मस्जिद का नाम है या फिर किसी मदरसे का नाम है या किसी शख्स का नाम है, ये देखने के लिए फिर मैं वो डिक्शनरी का इस्तेमाल करूंगा, वहां पर मुझे अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, कोशिश करेंगे, मैं आपको डिक्शनरी देखना सिखा दूंगा, और डिक्शनरी भी आपको ऑनलाइन जो पीडीएफ मेरे पास होगी वो मैं पेश कर दूं, ताकि आप आसानी जो है वो देख सकें, जान सकें। कुरान पाक का कोई भी हर्फ होगा, उसके आप उसके असल माना तक, उसके जो बुनियादी माना होते हैं, बुनियाद जो होती है, जो उसका मादा होता है, वहां तक आप आराम से पहुंच सकते हैं इंशाअल्लाह सर। ठीक है। छठा हमने इसम पढ़ा जी। कि ऐसा लफ्ज जो मुअन्नस हो या अजमी हो, या फिर वो अजमी ऐसा लफ्ज है कि तीन हर्फ से जायद है। अगर तीन हर्फ वाला ही है तो उसका दरमियानी हर्फ मुतहर्रिक होगा, तो वो गैर मुनसरिफ होगा, ना तनवीन आएगी ना ही इस पर कसरा आएगा। सातवां इसम है, सातवां इसम वो ऐसा सिफत का सीगा जो अफ़अलु या फ़अलानु के वजन पर आए। अफ़अलु का वजन, जैसे अहमरु, ज्यादा सुर्ख, सिफत का सीगा ना। अनसरु, ज्यादा मदद करने वाला। अकरमु, ज्यादा इकराम करने वाला। पहले वो था अफ़अलु, अलम था, यहां पर वो अफ़अलु का वजन सिफत के लिए भी आ गया। यानी अगर सिफत का सीगा अफ़अलु या फ़अलानु के वजन पर आ रहा है, जैसे अहमरु, अनसरु, अकरमु, अदरबू और गदबानु। गदबानु, ये फ़अलानु का वजन, इसका मतलब होता है गजबनाक, बहुत ज्यादा गुस्सा में। जो फ़अलानु के वजन पर आए वो सिफत का सीगा भी गैर मुनसरिफ होगा, यानी उस पर ना तनवीन आएगी ना ही उस पर जेर आएगी। अच्छा, कभी भी जेर नहीं आ सकती, यहां पर एक वजाहत करें, गैर मुनसरिफ पर एक खास माना में, एक खास तरीके पर जेर आ सकती है, वो क्या है? गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम लगा दें या उसे मुदाफ कर दिया जाए। गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम लगा दे या मुदाफ कर दिया जाए, तो इन सूरतों में उस पर कसरा आ सकता है। मसररतु बिल मसाजिदी, देखिए जमा मुंतहल जमू का सीगा है, मसाजिदुन, है ना, ओ सॉरी मसाजिदू। यहाँ पे अगर अलिफ लाम लगा दिया, मररतु बिल मसाजिद, मैं गुजरा मस्जिदों के पास से, या मररतु बि मसाजिदिकुम,
मैं तुम्हारी मस्जिदों के पास से गुजरा। अब देखें, गैर मुनसरिफ पर जब अलिफ लाम लगा दें या उसे मुदाफ करें तो उस पर कसरा आ सकता है, पावर उसे मिल सकती है। यहाँ पर एक वो किसी ने तरीकत की बात सिखाई कि देखें, अगर एक इसम है, वो सादा है, गैर मुनसरिफ है, तो उस पर कसरा नहीं आएगी, पावर नहीं होगी उसके पास। लेकिन अगर अलिफ लाम लगा दी जाए कोई और उसे पावर मिल जाती है, तो अब उस पर कसरा भी आ सकता है। तो ये एक तरीकत की बात होती है, यूं समझे कि एक तरह से निशानी समझ लें कि बंदा जब अकेला होता है तो उसमें कोई ताकत नहीं होती, कोई वो नहीं है, मामला उसके लिए बड़ी रुकावटें होती हैं। लेकिन जब उसे किसी बड़ों का साथ मिल जाता है, जैसे अलिफ लाम आ जाए किसी इसम पर, तो अब ऐसी सूरत में उसको वो पावर भी मिल जाती है, वो ताकत भी मिल जाती है जो उसमें नहीं होनी चाहिए थी। तो यही ये बात है कि बंदा जब मुरीद होता है, वो अपने पीर साहब के साथ रहता है या जिन बुजुर्गों से, जिन औलिया किराम से मोहब्बत करता है, क्योंकि देखिए कुरान पाक में भी हमें यही फरमाया गया कि उनके रास्ते पर चलो। सूरह फातिहा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि दुआ मांगा करो, इस तरह दुआ मांगा करो, नमाज में इस तरह दुआ मांगा करो कि हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया। तो उन लोगों का, किन लोगों के साथ हो जाओ, जो कहा गया कि कूनु मअस सादिकीन, नेक लोगों का साथ, सालिहीन के साथ हो जाओ, ईमान वालों के साथ रुकू करो, है ना। तो जो अच्छे लोग हैं उनके साथ जब तुम आ जाओगे, वो तुम्हारे साथ जब उनका दस्ते शफकत हो जाएगा, तो तुम्हें ऐसे ऐसे करामात, ऐसी ऐसी इज्जतें मिलेंगी जिनके तुम हकदार नहीं। ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जी। फ़वाइद व बरक़ात हासिल होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए अब दूसरी आईडी पे आ जाएं, इंशाल्लाह फिर सर्फ का सबक शुरू करते हैं।